everyone and welcome to the fourth episode of Talk About It. So ये episode specifically address करता है an aspect of societal expectations for women. ये episode मैंने start किया था shoot करना around Women's Day और आज जब मैं release कर रही हूँ it's last day of Navaratri. It's been a long journey but completely worth it. So इस episode में we are going to see how societal expectations have shaped or rather damaged the very existence of womanhood. हम ये भी देखेंगे कि कैसे आजकल की जनरेशन में इतने सारे ऐसे women हैं around us जो कि redefine कर रहे हैं इन societal expectations को और womanhood को as well in their own big or small way. So this episode is very different from my other episodes. इस episode के ज़रिए मैं कुछ ऐसे females को feature करना चाहती थी जो कि हमारे surroundings में हैं, living uncommonly in their common lives. Those who are determined to follow their passion, their heart, in the middle of all other responsibilities. In that journey, हम ये भी discuss करेंगे कि क्यों और क्या हैं ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. फिर हम देखेंगे कि कितना ज़रूरी है इन नॉर्म्स को रीडिफाइन करना. बेसिकली आई वुड गो इन द पास्ट एंड शोकेस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर अराउंड दिस कॉन्सेप्ट. सो लेट्स गो. Proud mother of two beautiful daughters. By profession I am a HR and by passion I am a painter. Especially mandala art is my forte and I am an enthusiastic hiker and I love to explore new places. Hi, my name is Oshmita Sarkar. I am a clinical hypnotherapist and a Reiki healer. Apart from that, I am a mother of a 6-year-old, a very passionate mental health advocate. I love to travel and I also love reading. I think the job that I do is promoting mental health balance and at the same time मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी मेरे पास आए they work on their inner strength and self empowerment. So that is what I'm driving and that is what I believe in. Out of Kuala Lumpur. 2019 I moved from US and I left my job there in financial services, and when I came here I just thought why not starting something of my own, which I always wanted to do, which is a clothing and accessory business. I started off with online 100%. Now I handpick my own collection for my stock, and I still do online because I handle everything from India. My all weavers and manufacturers, everybody lives in India. And apart from that, I'm a stay-home mom. तो ये तो हम बहुत समय से जानते हैं कि फीमेल्स की एक ऐसी इमेज, एक छवि बनाई जाती है और दिखाई जाती है जो कि एक गाइडलाइंस ही बन जाती है फॉर विमेन ऑन हाउ टू ऑपरेट एंड कैरी ऑन. ये एक्सपेक्टेशंस अराउंड बीइंग अ परफेक्ट मदर, परफेक्ट विमेन, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मल्टीटास्कर एंड व्हाट नॉट. देवी बन के पूजा भी औरत की जाती है, बट जब बेटी पैदा होती है घर में तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा. आई फील कि देवी तो बाद में बनाओ, पहले एक इक्वल ह्यूमन बीइंग तो मानो. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाहिर सी बात है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज एंड सेल्फ अवेयरनेस बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं इन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को और उन्हें
या तो मीट एंड ब्रीच करते हैं एंड एट द सेम टाइम उनको इग्नोर या रीडिफाइन करते हैं. दैट इज व्हाट वी सी एज अ एम्पावरमेंट फॉर विमेन इन टुडेज सोसाइटी ऑन अ वेरी हाई लेवल, राइट. मेरा पैशन मेरे जॉब में बहुत ज़्यादा है. आई लाइक टू स्टडी न्यू टेक्नोलॉजीज एवरी डे and I am proud that I'm able to do that with my profile. I also like to work a lot in politics. मेरी हॉबी है कि मैं political opinionated रहूँ, अपनी political inclinations को और आगे बढ़ने दूँ और भारत के लिए कुछ ना कुछ यहाँ रह के भी कोशिश करूँ कि करती रहूँ. इसके लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करी है. अगेन वहाँ पे भी बहुत सारे मैन होते हैं, लेकिन बहुत प्राउड होता है कि वो खुद सपोर्ट करके कहते हैं कि ये काम आप आगे करिए, आप टीम मैनेज करिए या ये काम. दे सपोर्ट मोर देन अदर वुमेन. Hi everyone, my name is Shiprika Saxena Acharya and लिखने का शौक है तो मैं पैशन से ही शुरुआत करूंगी कि मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है. लिखना इज समथिंग दैट गिव्स मी सोलियस फ्रॉम इनसाइड. सो जब बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ सो आई राइट अ लॉट एंड देन वो स्क्रिबलिंग जो चालू होती है फिर तो शब्दों का ताना बाना चलता ही रहता है. और इट्स बीन लाइक 6 to 7 years दैट आई एम राइटिंग नाउ. इंडिया से रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ बिकॉज आई एम स्टेइंग इन कुआलालंपुर फॉर पास्ट 4 years. तो वहाँ काफ़ी अच्छे और रिकग्नाइज ब्रांड्स हैं जिनके साथ काम किया है, जैसे अनिरेस पोइट्री है, नोजोटो है, देन योर कोट ओपन माइक है, आवाज़ स्टूडियो है. सो देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जिनकी छत्र छाया में मैंने ओपन माइक किए हैं, स्टेज शोज किए हैं और लोग कहते हैं कि ठीक ठाक और अच्छा लिख लेती हूँ. तालियां पड़ती है तो लगता है कि ठीक है मैं अच्छा लिख लेती हूँ. और कुआलालंपुर आने के बाद भी यहाँ इंडियन हाई कमीशन के लिए परफॉर्म किया है. फिर यहाँ पर भी आर्टिस्ट अड्डा करके कम्युनिटी है जो मौका देते हैं. और प्रेजेंटली आई एम अ मेंबर ऑफ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य परिषद. यस, मुझे पूरा नाम ठीक से याद नहीं है. सो हाँ, अभी इसी तरीके से चल रही है जर्नी और मजा आ रहा है. लिख रहे हैं, लोग नए नए टॉपिक्स देते हैं क्योंकि मैं वास्तविकता पे ही लिखती हूँ. मेरा फोर्टे है, मैं रियलिटी जो आसपास हो रहा होता है या जो अगर कोई मुझे कोई स्टोरी देता है, किसी के साथ कुछ हो चुका है तो उन्हें अपने शब्दों में ढालती हूँ मैं. सो या, दिस इज अबाउट शिप्रिका. सो लेट्स जस्ट गो वन स्टेप बिहाइंड एंड सी क्यों है ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, कैसे आया ये स्टेटस को इन दिस सोसाइटी और क्यों विमेन के लिए ही डिफाइन हुए हैं ऑन अ मोर वोकल लेवल. यू नो, अभी मेन के लिए तो वी हार्डली हियर ना कि परफेक्ट मेन कैसा होना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए, 4 लोग के सामने कैसे बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, या घर फैमिली और नौकरी कैसे संभालना चाहिए. वी डोंट हियर अबाउट ऑल दोज थिंग्स. इनफैक्ट ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि आजकल के मेन भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं घर में एंड बाहर इक्वली, बट देन उसको मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी उसको एज अ हेल्प ट्रीट करती है और एक समथिंग विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड वो एस्पेक्ट आता है, जबकि विमेन के लिए वो हमेशा से एक ड्यूटी रहे हैं. हमारे स्क्रिप्चर्स में विमेन के बहुत सारे शेड्स हैं. शक्ति का एक स्ट्रॉन्ग फियर्स रूप भी है और साथ ही चीरहरण को सहने वाले एक वीक इमेज भी हैं. Interpretations of these images, or I should say misinterpretations of these images and references has taken a toll on women in our society. मेरी पर्सनल थिंकिंग ऐसी है, सॉरी अगर कभी किसी को बुरा लगे इस बात का, कि गॉड हैज बीन द ट्रेंड सेटर फॉर एवरीथिंग दैट यू नो मैन इज फॉलोइंग. तो ऐसा मुझे लगता है कि ये भगवान जी ने ही किया है, जो भी किया है वहीं से शुरुआत हुई है. बिकॉज मैं अगेन सेम एग्जाम्पल पे जाना चाहूँगी. जब भी 2 राक्षस से चंडमुंड जिन्होंने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया हुआ था पृथ्वी पे और कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जो हमारे प्रिजर्वर डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर हैं. तो तभी क्या किया गया कि सबने अपनी अपनी शक्तियों से आदि शक्ति को जन्म दिया.
Right. ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने सुना है. तो आदि शक्ति was like she had the power of all the gods and she had that capability. Okay, she's the one who can kill those like demons जो कोई नहीं कर पा रहा है. तो वो एक जो वहीं से चला आ रहा है कि यस, बोलते हैं कि यस औरत नहीं है कुछ, या जो पुरानी थिंकिंग है, बट एट दी सेम पेज हमने वो नारी को ही वो जगह दी है दैट शी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग किलिंग द डेमन्स, जिनको मारना किसी भी देवता के वश में नहीं था, किसी के लिए संभव नहीं था. सो द रीजन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है वो महिलाओं से, ऐसा मुझे लगता है. सो आई गेस दैट इज अ गुड पॉइंट कि हमारे स्क्रिप्चर्स में विमेन को बहुत स्ट्रॉन्ग भी दिखाया गया है. आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं, प्रॉब्ली उनके मिस इंटरप्रिटेशंस हैं, जहाँ पे ऐसे दिखाया जाता है कि विमेन पति के ऊपर डिपेंड हैं, कमा नहीं सकते हैं, हम वीकर सेक्स है, बेसिकली हम वीकर सेक्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी दिखाए गए हैं. So maybe it's a battle between those two, और वहाँ पे हमें जो स्ट्रॉन्गर स्टोरीज हैं, probably कोई हमें वो उन पे ज़्यादा फोकस करने को सिखाए, सोसाइटी को सिखाए, वो स्टोरीज हमारे सामने ज़्यादा आए. So maybe उसके थ्रू there can be a change. There is a change of course, but बेस्ट एग्जाम्पल अभी आपके सामने है, शायद आज आपने भी सेलिब्रेट किया होगा. दिस इज नवरात्रि. सबके माँ के 9 रूप होते हैं. आपने कभी शंकर भगवान के तो 9 रूप नहीं सुने हैं, ब्रह्मा जी के नहीं सुने हैं. इट इज ऑलवेज माँ के 9 रूप होते हैं. सो शी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ दैट 9 पावर्स इन हर, दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हर. शी कैन डू एनीथिंग. अच्छी मदर, अच्छी वाइफ, अच्छी बहू, अच्छी ह्यूमन बीइंग, अच्छी सहकर्मी. शी कैन बी एनीथिंग. शी कैन बी एनीथिंग. क्या है ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस? Yo people, I just want to briefly introduce myself. I'm Tulika. I'm chartered accountant by profession, and currently I'm leading the finance function of a travel experience company as a senior director. And yes, you heard it right. I'm a woman and I understand finance. People told me that these professions are generally not for women, as it involves a lot of hard work, late nights in office, and being smart enough to manage the finances of the company, and women can't take out time for these given the family responsibilities. It's multitasking is about empowerment. It's about ability कि आप वो सारे काम कर सकें with equal finesse, with equal responsibility, and that is only possible जब एक औरत has that capability कि वो handle कर सके. But what, and unfortunately वो actually ये research has said that we do not know where to draw the line. हम लोग वो border के बाहर तक भी जाके करते रहते हैं and then we suffer, और फिर हम लोग we move into empathy, sympathy and all of that. So I think this is the right time जब हम लोग वो दायरा, वो border के आगे निकल के बोले कि this is what I will do. Multitasking is my job because मैं उतनी काबिल हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा, nothing more than that. So that is how I think we should rewire and reframe what multitasking is actually is, or it defines. In my opinion, I don't think it's a mushkil. It's just about, it requires a great synergy to between the pursuing your career and passion, which goes hands in hand. Like taking an example for myself, where I have pursued my career and as well as my passion, and I never let my passion fade away. And along with that, I'm taking a responsibility of my family, growing my kids, and giving as important to my passion, like giving time for my painting, going for hiking, exploring new places. So I think it's just a synergy which keeps things together. So of course, जो डैमेज इन एक्सपेक्टेशंस ने किए हैं ओवर विमेनहुड, वो धीरे धीरे करेक्ट एंड इवॉल्व हो रहे हैं. लाइक इन एनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ह्यूमन ब्रेन सबसे ज़्यादा अपने सराउंडिंग्स को देख के इवॉल्व होता है, इम्पैक्ट होता है. सो विमेन ऑन अ लार्जर स्केल, दूसरे विमेन अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको देख के इन्वॉल्व होते हैं. बिकॉज मैं अपने डैड को अपना हीरो मानती हूँ.
वो मतलब सब कुछ है, सब कुछ. So even my husband knows कि अच्छा उनको पता है, he is the second best man in my life and he's quite okay with it. So we are 3 sisters, हम 3 बहनें हैं. पर ये स्टोरी है जब हम 2 बहनें थी और सोसाइटल प्रेशर, ठीक है, कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है. तीसरी भी लड़की हो गई. हाँ चलो ठीक है, प्लान करते हैं और शायद इस बार बेटा. My youngest sister was born already. अच्छा. And we had no clue. So okay, ठीक है, हम लोग मम्मी की तबीयत खराब है. And Papa came back from office and Papa said मम्मी क्या है? So we said मम्मी की तबीयत खराब थी, मम्मी को इंजेक्शन लगा है, she has gone to hospital. So he understood. अच्छा. He didn't know कि मेरी सिस्टर आ चुकी है. He came at 8:30 and he had no clue about it. So he got the point. He understood and उन्होंने बोला ठीक है तुम लोग रहो, मैं मम्मी को लेके आता हूँ करके. उस वक्त मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, बट हाँ लैंडलाइंस थे. तो मैं बताती हूँ लैंडलाइन का एक कॉल पापा के पास क्यों नहीं गया. सो व्हेन पापा रीच्ड हॉस्पिटल, सो दैट आंटी जो मम्मा की फ्रेंड थी वो बोली कि भाई साहब बेटी हुई है. तो पापा वाज लाइक कि भाभी जी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे घर में नया बच्चा आया है. तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड भाई साहब लड़की हुई है, मैं कैसे बताती. सो माय फादर वाज लाइक वो लड़की नहीं हुई है, इट्स अ चाइल्ड टू मी, इट्स माय, कहते हैं मेरा अंश है जैसे वो हुआ है. एंड एक्चुअली बिलीव मी उस टाइम पे माय फादर ऑर्डर्ड so many काजू कतलीज and he distributed in whole hospital. So my auntie was in tears कि आज के टाइम में इस तरीके के लोग देखने के लिए नहीं मिलते. और कहती भाई साहब मैंने आपको डर के मारे फोन नहीं किया कि आपका रिएक्शन क्या होगा. My name is Vaishali और मैं एक MNC में काम करती हूँ and I am a certified Zumba instructor. Basically expectations, I don't know what expectation is because मेरी जो mom थी, she started off being independent at a very early age. So वो अपना movement from her house to a city, a metro city I would say, वो बहुत जल्दी हो गया. So she has been independent at a very early age. So and I've seen her working and taking care of both घर का and बच्चों को देखना. तो वो मुझे देख के I was like okay कि why shouldn't I follow the same. And उन्होंने one such thing is I was very passionate about dancing. तो मैंने काफी सारे डांस शोज भी अटेंड किए और काफी कुछ किया है. But वो एक चीज होती है जहाँ पर I was a chubbier kid right from my birth. सभी ऐसे नो they used to tease me like मोटी चब्बी and गाल पकड़ना ये बना बहुत कुछ होता था. तो मैं ये सोचती थी कि भाई अभी एक तो हूँ मैं मोटी, which I accept, there's no harm in being मोटी. तो मैं सोचती थी अगर ये मुझे करना है, अपना पैशन फॉलो करना है, तो probably I'll have to work on myself because अभी जब भी देखो जहाँ भी देखो सब ऐसे क्या बोलते साइज 0 and that what status, whatever body status वो सब देखते हैं. So I was like तो मैंने अपना थोड़ा सा back step ले लिया. Then my mom was like why do you want to do it? If you have a passion, then go for it. And thankfully my parents and my husband also was very supportive in this. So I said why not start taking Zumba. So I started, I did a course in Zumba, I certified myself in Zumba and I'm happy about it and I'm seeing it is a logical and fundamental responsibility of women in every generation to work towards breaking these norms, creating examples जिससे हमारे आने वाली generation, especially हमारे बच्चे ये जाने कि how important it is to not have a norm, especially when it comes for women, not to have a stereotype, not to have stigmas and break free. My name is Deeksha. I am the president at Little Seeds NGO. So I have been linked with Little Seeds NGO since like its base, like the foundation. It's like it's been 3 to 4 years that I have been linked with. And Little Seeds NGO majorly focuses on 3 missions. That is Mission Pathshala, Mission Shakti and Mission Paryavaran. So if I talk about Mission Shakti, so Mission Shakti is basically that campaign where we focus on women empowerment, on how we can use women's skills and talents to, you know, in a such a thing where they can earn a source of money, earn a source of income which can be used in their families and, you know, like
in earlier times, women were only had a mindset that they have to work, or they have to work in the house only. So we are helping to change that mindset and promoting women empowerment. मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं. Only way to realize and correct this damage is to get self-awareness, follow the path of courage to defy unnecessary stigmas, and also keep talking about these progressive life stories in today's society. ये नॉर्म्स जो सदियों से हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी शायद ज़रूरत ही नहीं है. मे बी देयर आर लार्जर थिंग्स दैट वी कैन डू और नॉट डू. It is a journey to undo the damage that has been done, so let's keep working towards it and let's talk about it. And see you all in the next episode of Talk About It. Until then, take care.